Okay, so let's start this session. This is a group task session for sale, and we have taken a task from the sale only, and this is the group task number 4 we are going for. You people are already aware what is a group task and how you have to behave in this. You have to basically solve some kind of puzzle or riddle which is provided to you, and you have to provide a solution through consensus. You have to talk, you have to participate, you have to think innovative, and you have to coordinate with others. Three sections will be like starting and then participation and then conclusion. That will remain same. So I'm sharing now this particular screen, and you can see this group task number 4 comes on your screen. Is it visible to you? Yes, sir. It is visible. So let me give you, this is a feature of the job. 10 features are suggested to you. You want to join a job. What do you see in the job? Out of these 10, what do you see in the job? You have to prioritize the things. What do you want? Number one, number two, something like that. I give you 5 minutes. In the meantime, maybe I send you that in your group also, PDF, but you see these points. And what I want is like one page, on one particular page, you write your preferences first. You write your preferences first, 1 to 10 on a page, and then later on after the end of the discussion again we'll reach some consensus. So as of now, you take some time and write your preferences, and then through consensus we can make some kind of preference later on. But अभी जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप 10 लगाओ everyone, and later on after consensus let's see what do we get.
Okay, so I think now you people have written your own list. So without telling others what your list is, what is your number, final number one is, and all. Now you discuss among yourself and provide the final list through consensus, right? So please go ahead now. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I am Shashi Karak, and I would like to take the opportunity to introduce a topic before everyone. So, given a job and 10 features, we are supposed to arrange them as per a priority. Guys, please, one, guys. My opinion, the first point Say should something come and first give is your work point. profile. If a person पहला पॉइंट होना चाहिए अपना वर्क प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना चाहिए वर्क प्रोफाइल कैसी है। सबसे पहला पॉइंट मुझे भी लगता है कि वर्क प्रोफाइल होना Based on चाहिए। our degree, based on our education qualification, we should see which work profile we are based on. Accordingly, we should स्पेशलाइजेशन क्या है हमारा, क्या work for engineers only, for the finance sector. सिंगल पर्सन जो है, तो मुझे लगता है सिंगल वर्क पर्सन प्रोफाइल जो को है हम वो लोग हर फर्स्ट तरह रखना के जॉब के लिए सुटेबल नहीं होता है। या हर पर्सन के लिए हम लोग कोई भी सूटेबल नहीं होता है। Something like based on our degree and based on our education qualification, we can decide on our work profile. तो देखिए, सबसे पहले अपन वर्क प्रोफाइल को रखते हैं ना, वर्क तो प्रोफाइल हम वर्क प्रोफाइल को फर्स्ट में रखते हैं। I agree to work profile. Work profile. सेकंड पर हमारा होना चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सेकंड पर होना चाहिए लॉन्ग टर्म after work profile we have to see Second thing will be something like the roles and responsibility which comes next after checking the work profile. roles and responsibility are Roles related and to the Yes, work roles and responsibility the second one. Yes, yes, related to roles the and work profile. Yes. सैलरी The अगर roles and आप responsibility. कहीं भी जॉब के लिए देखते हैं तो आप सैलरी I आपके think we all are नहीं ऑटोमेटिक देख लेते नहीं हैं जी, मैंने ग्रॉस सैलरी क्या हम है, लोग ग्रेड देखते TTC क्या हैं। है, ग्रेड 1 का जॉब है, ग्रेड 2 का जॉब है, ग्रेड 3 का करे या नहीं करे, I लेकिन think एक salary रियलिटी is होता what है। we दिस should इज look if we रियलिटी are चेक है। already doing a job नो and नो whether we अगर हम want to कहीं भी switch जॉब के or लिए not. So कॉलेज based on प्लेसमेंट the या कोई salary, कंपनी we can ओपन होता decide है तो that. हम लोग वर्क प्रोफाइल के बाद नहीं, सेकंड हम लोग देखते रोल हैं कि रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। प्रोफाइल क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी पहले तो roles and responsibility देखना चाहिए. Like second is should have the roles and doesn't like the responsibility. job. I think everybody is agreeing with the roles and responsibility. नो नो आई एम नॉट एग्री विद यू। अगर आप कभी भी आपका प्लेसमेंट में कंपनी या कॉलेज का प्लेसमेंट में बैठे हो तो आप ऑलरेडी सबसे पहले हमको वर्क प्रोफाइल चेक करनी चाहिए एंड द सुटेबिलिटी एंड देन agree on अगर पॉइंट मुझे लगता है सैलरी यदि हमारा वर्क प्रोफाइल करके बोले पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं अजीत से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मैं अजीत से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। या आस्क मी। अच्छा ठीक मैं ये है पूछा पहले देखिए बहुत ज्यादा पैसा दिए Roles and responsibility. Why should we agree to roles and responsibility? अजीत तुम्हें नो नो बहुत नो ज्यादा पैसा दे दिया यार, आप एकदम लो ऑलरेडी हम लोग सब बीटेक किए हुए हैं। नहीं करोगे। I think we all are agree with हम लोग second ऑलरेडी point, right? किए हुए हैं, कोई भी कॉलेज से किए अरे तो हुए हैं। बीटेक का जो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी देख के जा तो रहा अगर है कॉलेज प्रोफाइल अगर कोई उसी की तो बात कंपनी हो आती रही है होगी तो ना हम लोग कि ये हम नहीं देखते बीटेक कि है, 4 लाख का हमारा जॉब है, 4 लाख के बीटेक का जॉब जो पे बैठ रोल जाए। है उसी के अनुसार काम करेंगे। ऐसा नहीं है ना, नो नो ऐसा नहीं तो वर्क प्रोफाइल तो फर्स्ट में रखना है, वर्क प्रोफाइल तो फर्स्ट में रखना वो कि तो किसके लिए clear हम हो लोग गया। उसी के अंदर आएगा ना रोल्स एंड जल्द से जल्द रिस्पांसिबिलिटी। What are वर्क प्रोफाइल हम सब तो सैलरी हम लोग आना ऑटोमेटिक चाहिए। माइंड रहता है। अगर कितना ये कोई भी पोजीशन हो सैलरी- सैलरी हम लोग ऑटोमेटिक देख लेते हैं कि 10 लाख की देखिए, कंपनी आ रही है, 5 लाख की आ रही है, मेरे 6 लाख की आ रही हिसाब है, से कोई भी है तक दे रहे हैं कि 20 लाख दे रहे एक हैं। ऐसा काम दे दिया जाए, क्लियर करना एक ऐसा चाहता काम हूँ। दे दिया जाए। सैलरी शुड बी द पॉइंट विदाउट मनी आवर Guys, मोटिवेशन नहीं मिल सकता है। it's विदाउट करना मनी चाहता हूँ। कोई मोटिवेशन नहीं मिल सकता है। arrange a Guys, particular order. देखिए हम एक चीज को जैसे अभी हम लोग सेल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें अल्टीमेटली हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो देख ही रहे हैं ना कि हमें लॉन्ग वो देखना पड़ेगा, वो सैलरी के बाद है। वो तो वो अभी थर्ड भी पॉइंट हो देखना गया। पड़ेगा। Mayank, please मेरे complete को मेरे वो थर्ड पॉइंट है। मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेकंड अपॉर्चुनिटी। पॉइंट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन सैलरी के लिए कौन रेडी है? वो लास्ट में सुन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ लॉन्ग अगर टर्म उसमें ग्रोथ please अपॉर्चुनिटी say one by one. प्रोजेक्ट रहेगा फिर भी हम लोग रैंकिंग कर लेते हैं Ajit, Ajit, please continue your point. तो वो सैलरी के लिए नो नो अगर आपका जॉब 2 लाख के लिए लगा, 2 लाख
इतना ऑप्टिमम नीचे होकर आप जॉब नहीं लेना चाहोगे, कोई भी आदमी कि 2 लाख के अगर सेकंड पॉइंट पे क्या रखना चाह रहे हो? सबसे पहले आप ज्वाइन नहीं करोगे क्योंकि आपका एक पोजीशन है, आप बीटेक किया या एमटेक किया है, आपका एक पोजीशन है, डिफाइन करेंगे ना वो Anybody can tell me roles and responsibility and growth. And what is the reason? Roles and responsibility and growth. प्रोफाइल खुला था, सेल का एक खुला था रीजन बताता हूँ। जैसे हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, पहले हमको ये देखना चाहिए उस कंपनी का सपोज करिए कोई कंपनी और हमको वो स्टार्टअप कंपनी हाई पैकेज का हायर कर रही है, लेकिन हमको काम कर रहे हैं for the long term goal. आपका स्टार्ट अगर 2 लाख से होगा लॉन्ग टर्म पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद सोचना, लेकिन सैलरी के बाद सोचना। देखिए सैलरी आप क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज करिए आपको हायर करने के लिए स्टार्टअप आता है, अब वो स्टार्टअप देखो मैं इस तरीके से हम लोग आंसर पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? लेकिन क्लियर है तो क्लियर करो, क्लियर तो समझो क्या बोलना चाह रहा है। I think all the plan is the first priority. We are fighting for a long time for the third वो point. थर्ड पॉइंट पे रखेंगे Salary is the third point. एंड पर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे रख रहे हैं ना, वो ठीक है, लेकिन अच्छा आप लोग सेकंड पे क्या बोले हो? डिप्लोमा क्या हो, इंजीनियर हो, बाकी वो आप सब लोग बोले हो क्या हो, सेकंड पे रोल सेकंड पॉइंट पे मेरे हिसाब से सैलरी रहना चाहिए। सैलरी सेकंड पॉइंट आप सोचो आप डिप्लोमा की हो या बीटेक की हो या सुटेबिलिटी हमें रखना चाहिए। अगर हम अपने काम के प्रति सुटेबल नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे? देखिए अगर आप सैलरी देखेंगे, स्टार्टअप आया ठीक है, मैं पॉइंट में समझाना चाहता हूँ। देखिए अजीत जी, मैं एक पॉइंट बोलने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन चाहता हूँ, बस आंसर दीजिए। सपोज करिए आपके पास 2 कंपनी आई है, ठीक है, एक स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है और एक 100 साल पुरानी कंपनी है थोड़ा सा कम पैकेज दे रही है, आप कौन सा कंपनी प्रेफर करेंगे? लेकिन वो थोड़ा सा कम नहीं, लेकिन हम 50 बीटेक है, डिप्लोमा है, आप बस इसका आंसर बताइए। करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। One will go for long term. It is also important not just the salary immediately that we are getting. Instead of that, we have to consider. अजीत कुमार जी, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए आपके पास सेल है जो 15 लाख का पैकेज दे रही है, आपके पास स्टार्टअप है जो 20 लाख का पैकेज दे रही है, आप क्या चूज करेंगे? आप ये बताइए। मैं सेल करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले कंपनी का लेकिन सैलरी ओनली ये पोजीशन 50 लाख है इसलिए मैंने हाँ बोला, 50 लाख है इसलिए मैंने हाँ बोला, 2 लाख आप देखिए आप तो होना चाहिए ना। ये नहीं कर रहा हूँ जी, अभी आपने खुद ही आंसर दिया ना। देखिए अजीत जी, अभी आपने खुद ही आंसर दिया। देखिए अभी आपने लॉन्ग टर्म अगर देखिए फैमिली वाले भी पूछते हैं ना तो सैलरी अच्छा ठीक है, सैलरी के विदाउट तो कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ये भी तो देखिए अपन खुद देखते हैं। अजीत जी एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन ग्रेजुएट होते हैं, अजीत एक क्वेश्चन और ठीक है। देखिए बहुत से IITs ग्रेजुएट होते हैं, अच्छे पैकेज से फॉरेन जाते हैं,
अपनी जॉब छोड़ के आते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उससे कम पे काम करते हैं। एग्जांपल नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल है, देखिए ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एग्जांपल है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये सही बात है। ये लोग ऐसा कर, मैंने भी यही बाद में फॉरेन जाते हैं फिर देखिए काम करते हैं, मेरे साल पहले हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगा, उसके बाद हमारी सैलरी आएगा। चलो वहां भी बोलता है कि आपको लॉन्ग टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी शुड बी वाले के हर साल निकालता देखिए तो देखिए पहले तो हमारा वर्क प्रोफाइल हो गया, आप क्यों नहीं पहले वर्क प्रोफाइल रिस्पांसिबिलिटीज हो गया, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी आना चाहिए। तो आपको इंजीनियर मिलेगा, आईओसीएल भी मिल जाता है। एक एक करके बोलिए, एक एक सचिन मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। अजीत बोलने दो मुझे, ठीक है? अगर आपको आईओसीएल में हर साल जॉब निकालता है डिप्लोमा लेवल पे, आप क्यों नहीं उसके लिए ज्वाइन करते हो? गेट के थ्रू क्यों जाना भैया चाहते हो? मैंने बीटेक किया है, That defines the roles and responsibility. वैकेंसी आती है, हम एलिजिबल नहीं रहते हैं, अप्लाई नहीं करते। मैंने बीटेक किया, अदरवाइज जो नहीं किया है ना, दो वैकेंसी जो बीटेक पे आती है वो हम अप्लाई करते हैं। लॉन्ग टाइम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। Guys, we have very less time. We have to decide. Yes, you have to decide. We have to decide. We have to decide one thing. Long-term growth opportunity. Like we have अच्छा, Majority is माइंड going नहीं for रखते, long-term मैं नहीं रखने के लिए growth बोल रहा हूं, लेकिन opportunity. salary एक सेकंड मेजोरिटी पे चलते हैं, ठीक है, एक सेकंड मेजोरिटी पे चलते हैं। Majority is Yes, going yes, yes. long-term Yes, we have to, आप we एक should point follow बोलिए, the majority. No. Salary अच्छा should ठीक है, come भाई in एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। long term growth, आप ये नहीं सुना रहे क्या? opportunity should be third point. हाँ, थर्ड पॉइंट तो वही Long-term- रखेंगे, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सेकंड क्या रखेंगे? सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड क्या है? सेकंड Roles and responsibility. सेकंड है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ Roles and कि responsibility. नहीं। अगर सेल में Second तुम्हें salary 1.5 होना लाख चाहिए। रुपया दे रहा है, सचिन जी, वो तुम्हें सचिन एज ए वर्कर रख रहा है ना, एक मिनट, अगर तुम्हें 1.5 लाख रुपया दे रहा है सेल में, तुम्हें एज ए वर्कर रख रहा है, तुम्हें आईओसीएल में 50,000 एज ए मैनेजर रख रहा है, तुम कौन सा जॉब प्रेफर करोगे? देखिए मेरे को जॉब हमेशा है ना, मिली, तुम्हारा रोल्स एंड मैं रिस्पांसिबिलिटी बता तो रहा हूँ, मैं अरे आंसर देना तो बता रहा So what you are telling is very hypothetical. Come to us a practical example. I think you are saying like something very hypothetical. सैलरी की बात आता सचिन जी मैं आपको आंसर देता हूँ, पीएचडी सोचो ना, सचिन जी मैं आपको आंसर देता हूँ, लिसन आईओसीएल देखिए मैंने किया है बीटेक, तो आईओसीएल में मैं बीटेक के लिए अप्लाई करूंगा और सेल में बीटेक के अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगा। बिल्कुल, तो आप बीटेक क्यों अप्लाई करो? डिप्लोमा से भी Yes, yes. वहाँ जाने पर आपको ये प्रैक्टिकल देखिए, डिप्लोमा में हम एलिजिबल है ही नहीं तो हम जा ही नहीं बीटेक सकते। किया है तो मैं वर्कर के लिए क्यों जाऊंगा, आप ये बताइए ना। एलिजिबल हम वो नहीं आएंगे। एलिजिबल है ही नहीं। एज अ वर्कर काम करना होता तो मैं बीटेक नहीं करता। अगर मेरे को एज अ वर्कर काम करना होता, इसलिए आप जा रहे हो। देखिए अगर मेरे को ऐसा वर्क का काम करता तो मैं बीटेक ही नहीं करता। मैंने बीटेक क्यों किया? ताकि मैं काम करूं ना। एग्री विद द मयंक। आई थिंक हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। We have to decide सेकंड है हमारा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड है हमारा long term growth एंड फोर्थ है सैलरी। Now we have to discuss what will be the fourth point. फोर्थ is salary. I think independence is Fourth is also Fourth salary. No, Salary. नहीं समझ रहे When हो, we सैलरी go को for a क्यों job, पॉइंट पीछे रख we रहे हो? know we want to be independent. आप सैलरी को पॉइंट पीछे रख रहे हो, सैलरी को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट माइंड में वही रहता है कि सैलरी क्या है। because job करे तो सैलरी अच्छा फोर्थ में सैलरी रखते हैं। जॉब में इंडिपेंडेंट नहीं होता। करना पड़ेगा, हमारा प्रमोशन कैसे होता है? independent job is job we do later on. इंडिपेंडेंट Choices कोई learn जॉब how कभी to इंडिपेंडेंट नहीं work. होती। Independent Fourth number says that हिसाब से factors will have अच्छा मेजोरिटी पे चलते हैं। अच्छा ठीक है मेजोरिटी पे चलते हैं। एक सेकंड independence is also required because sometimes we have the profile but we don't have that Correct. नो नो सर 6 लास्ट बात है, 6 पे रखेंगे। आप आर्मी का जॉब But चलाओ, I आपको think first इंडिपेंडेंस we नहीं have to मिलेगा। learn before वहाँ पे डिसिप्लिन expecting फॉलो करना independence. पड़ेगा। First We we have won't to work create in a an team before independence doing in a job. job Okay. independently. देखिए मेरे हिसाब से अच्छा एक एक पॉइंट पांचों देखिए का माइंड जी आप एक एक पॉइंट बोले
ठीक है। हाँ। एक काम करते हैं मयंक जी, आप एक एक पॉइंट बोलिए जो हम लोग अभी मेंशन 10 पॉइंट्स ठीक है, है, उसमें देखिए। जो मेजोरिटी है हम लोग मेजोरिटी से पहले एक लिस्ट बनाते हैं, ओके, और जो अनएग्री करे वो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक देखिए है, पहला हमारा क्लियर था वर्क प्रोफाइल, ठीक है। Yes, yes. सेकंड हाँ, वो हमारा clear क्लियर है। था रोल्स Roles एंड and responsibilities. थर्ड हमारा Roles and क्लियर था responsibilities, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ हमारा Okay. क्लियर था बिल्कुल, ठीक सैलरी, है। ठीक है। Correct, इसमें correct. मेरे Salary, पास ठीक होना है। चाहिए प्रमोशन, Yes. लाइक हमको कितना Salary should Promotion, not बिल्कुल। be. ठीक I है। think अपन कोई भी promotion should be प्रमोशन done के लिए before कौन राजी है? salary. फिफ्थ मैं नंबर, promotion ठीक है, के लिए फिफ्थ Roles and नंबर प्रमोशन के लिए मैं responsibility, राजी हूँ। guys. Roles and responsibility is also required, ना? अच्छा, एक What सेकंड, एक वो सेकंड, सेकंड में आ It is गया coming है। in second. अनीता पाल जी वो हो चुका है, वो Second सेकंड पर है। तो सेकंड नंबर पे मेरा एक This बात is सुनो। the second point, and this is which one? मैं आई वांट टू फिफ्थ वन नंबर, अजीत ठीक कुमार है, जी, please मयंक जी, मुझे अजीत जी, पॉइंट एक बोलने सेकंड, दीजिए। अजीत जी, एक सेकंड, अजीत को प्लीज अजीत मौका जी, मयंक जी दीजिए। को बोलने दीजिए। देखिए प्रमोशन 5 नंबर, जो अभी मयंक जी बोले प्रमोशन 5 नंबर पे, तो कौन कौन एग्री कर रहा है? मैं तो एग्री कर रहा हूँ। Yes, मैं मैं भी भी मैं agree एग्री कर किया। एक agree कर रही हूँ। Yes, I agree. I agree. I agree. ठीक है, एंड इस पे मेरे हिसाब से रिकॉग्निशन नंबर आना पे? चाहिए, क्योंकि हमको हमें वर्क का रिकॉग्निशन कैसे मिल रहा है हमको, लाइक हम कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉग्निशन रखे कि रेस्पेक्ट रखे? प्रमोशन रख रहे हैं। अच्छा मयंक जी, मयंक जी, रिकॉग्निशन रखे कि रेस्पेक्ट को रखे? क्या रखे? 2 पॉइंट है। Respect, respect. Respect, respect. हेड हेड लीजिए, Respect. Respect, then respect. recognition. रिस्पेक्ट देन Yes, रिकॉग्निशन। yes, respect. Yes. अच्छा, Okay, तो फिर Then 1 2 recognition. 3 4 5 तो Respect 6 तो पॉइंट को हमारा रेस्पेक्ट को हमारा रखते हैं। Recognition. अच्छा, Yes, 6 yes. पॉइंट को रेस्पेक्ट रखेंगे ना, Respect then recognition हाँ रखेंगे? रेस्पेक्ट होगा 6 देन पॉइंट Yes, yes, रिकॉग्निशन, respect and देन देन रिकॉग्नाइजेशन देन प्रॉक्सिमिटी टू होम, लाइक घर के कितना पास है। कभी कभी घर में बराबर, हाँ, इमरजेंसी आ सही है। जाती है तो हमको जाना पड़ता है, तो Yes, yes. Yes, I yes. think proximity और हम मेरा और एक कोई बात बता सुनो। सकता है। Recognition. फिफ्थ proximity हम थोड़ा नीचे नहीं, ला नहीं, सकते point हैं। पे Because respect है। अरे, feel is that हम- अगर अरे, job नहीं, profile नहीं, नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा सुनिए, ही सुनिए, अच्छा सुनिए। है तो हम लोग और एक फ्लेक्सिबिलिटी चीज इन मिस वर्क कर रहे हैं। different place. फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क देखिए, और एक चीज फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर flexibility. I think for the Flexibility. 8 point we should मिस not कर we गए। can Point tell is that we can flexibility think in of working flexibility in नहीं work प्रायोरिटी मिस रखना कर रहे हो। पड़ेगा Flexibility in working प्रॉक्सिमिटी hours टू should be होम there. से पहले अच्छा, हमें सुनिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर रखना प्रमोशन जो है, Yes, yes. Flexibility Okay. in working प्रमोशन hours के should be बाद मुझे there. क्या लगता है ना, रेस्पेक्ट से पहले मुझे क्या लगता है, सुनिए, जो रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन है उससे पहले शायद फ्लेक्सिबिलिटी को रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स का बात है, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा ना Yes, yes, कि I'm कितने agree with कौन सा you. वर्किंग आवर हम I'm लोग agree with Aman. Flexibility, flexibility. Yes, yes, रेस्पेक्ट से थोड़ा पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, वो Yes, yes, प्रैक्टिकल yes, की बात yes, है, yes. सही। Flexibility भी होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी को ऊपर रखना मतलब पड़ेगा। प्रमोशन के बाद रखते हैं। Correct. प्रमोशन के बाद हम तो लोग promotion- फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। नहीं 6 नंबर में हम लोग रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर प्रमोशन के 7 बाद पे रखते ठीक है, हैं नहीं, तो एक सुनिए, पॉइंट में रखते हैं कि जो रेस्पेक्ट Fifth एंड पे प्रमोशन के बाद Fifth रखते हैं। पे बाद में ठीक है, recognition प्रमोशन रखते के हैं. बाद प्रमोशन के बाद रखते हैं। रखते हैं 6 नंबर पे प्रमोशन हमारा 5th नंबर प्रमोशन पे के बाद रखते हैं हाँ तो flexibility। 6 नंबर पे बट रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट एंड वर्किंग आवर रिकॉग्निशन पे तो हम 1 2 देखेंगे ना। 3 4 5 हाँ, प्रमोशन के बाद देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा, Promotion मेरे को के ऐसा बाद लग रहा है आएगी। कि हमको Promotion रिस्पेक्ट 6 से नंबर पे पहले शायद आएगी। रिकॉग्निशन रखना पड़ेगा, बिकॉज देखिए अगर हम काम करेंगे हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली हाँ। रिस्पेक्ट तो मेरे को आ ही जाएगी ना। अल्टीमेटली रेस्पेक्ट आएगा, अल्टीमेटली रेस्पेक्ट भी आएगा। Correct, तो correct. recognition पहले से recognition, फिर then पहले respect recognition आएगा। तो रखना ऐसे है ना, चाहिए. हमें चूज करना है Yes, yes, I agree. चूज करेंगे। Recognition अच्छा, जॉब ठीक चूज है, करके करेंगे. मैं पॉइंट बोल रिकॉग्निशन रहा नहीं हूँ। मिल रही उसके है, बाद आप respect जॉब की मिलेगा. चॉइस सुनिए, में क्या सुनिए, देखेंगे? Omar, आप Omar, recognition get- देखेंगे get- या बाद में respect मैं मिलता है. summarize- यहाँ एक पे second, मैं के पास से मैं सहमत हूँ summarize पहले कर दे रहा हूँ। रिकॉग्निशन आएगा मैं summarize कर रहा हूँ। Yes, ठीक yes. है, ठीक है। पहले सचिन जी एक I सेकंड, think Amar मैं is trying summarize to कर दे रहा हूँ। summarize the Respect point. and recognition में अच्छा, सुनिए, After the Summarize summarize profile हो promotion गया। will say Amar, respect and after that Sunil, let us we go थोड़ा to और डिस्कस कर here लेते हैं, Amar, पहले अपन I आगे agree. बात कि होगी। flexible कहीं work पे hours जॉब का में 8 choose a point job अपने में लेवल पे नहीं what मिलेगा you ठीक है, will ठीक है, say ठीक है। अच्छे से recognition करेंगे not एक your recognition work. आ जाएगा See तो what फिर आपको respect रेस्पेक्ट is मिलने going to लगेगा give me. Yes, yes, yes. अरे, First, एक if सेकंड, सुनिए, we get वन recognized, नंबर पे afterwards only we देखो, get ठीक है, respect, na? एवरीबॉडी सुनिए, एवरीबॉडी Yeah. सुनिए, नंबर 1 पे वर्क When प्रोफाइल you रहा, do ठीक है, work, सेकंड पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा, थर्ड पे अपना लॉन्ग टर्म जो वो बेनिफिट्स ये रहा, Yes. चौथा हम लोग का सैलरी Opportunity. रहा, growth opportunity. पांचवा रहा हम लोग का प्रमोशन, promotion. ठीक है, Promotion. सिक्स पे रहा हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी Flexibility, correct. ओके Flexibility. Yes. 7 पे रहा रिकॉग्निशन, Recognition, correct. Okay. Respect. Then we should have Then proximity to home, respect. then और फिर independence. Proximity to home, then Proximity. फिर क्या? independence. Proximity to to your home, home. उसके बाद Then independence आनी independence. चाहिए. Yes. Last पे क्या रहा है? Proximity थोड़ा to your repeat home. करेंगे आप प्लीज then रिपीट independence. करेंगे 8th पे क्या है? 8th पे है रिस्पेक्ट, देन 9th पे है respect proximity respect to है। home, 8 पे Proximity respect to home and then 10th one is Independence to independence. independence. Independence, Yes. In correct.
तो ठीक है, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। Can I say लिसन something? लिसन ओके I want to hello. Can we keep proximity as the 10th point? Because see, if the job is very good, and there are many jobs where you don't get the job office in every places. So in that case, you see the work profile and the other terms, and then you see the proximity at the last point. There are many jobs which are non-transferable and have office only in certain location which may be far away from your family. So in that case, we may even think of shifting our family. So in that case, can we keep proximity at the 10th point?
बट I think I'm agreeing with Shreyasi here. एक्चुअली मैं भी कुछ Students- एग्री कर रहा है, घर के पास जॉब नहीं मिलता है, opinion, independence मैक्सिमम चांस ये होता है लोगों को अपने घर के पास नहीं मिलता है जॉब। independence तो फिर भी करते हैं। we know we will never get independence तो in हम a लोग job. हमेशा यही चाहते हैं, देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि तो नहीं हमारा ट्रांसफर है और घर से कुछ दूर ही मिलता है। नहीं अजीत, तुम्हें दो ऑप्शन दिया जाए, तुम्हें इंडिपेंडेंस नहीं, दिक्कत क्या है ना, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपका ट्रांसफर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मैं आपको आंसर देता हूँ सचिन जी, मैं आपको आंसर देता हूँ। एक सेकंड, नहीं नहीं, मुझे आंसर आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ ओके, बात बहुत सिंपल, आपका किसी पॉइंट अच्छा को है, लेकिन इंडिपेंडेंस बात ये है कि हर जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर किसी कंपनी में, जैसे हम लोग सेल की बात करें कि सेल में हम लोग को जॉब चाहिए जिसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो गारंटी नहीं है कि मेरे घर के पास ही मेरे को वो जॉब मिल रहा है। अगर सपोज मेरे घर के पास होम टाउन में लोकेशन नहीं हुआ तो मैं जॉब नहीं चूज करूंगा, मुझे तो कुछ ना कुछ देखिए जो साउथ से है यहाँ पे इसका लोकेशन Yes, I think for sale or any other company, there are many plus points that has to be looked before just the proximity factor. आप लोग इंडिपेंडेंस क्योंकि पहले जॉब जरूरी है, जॉब जरूरी है, जॉब जरूरी है सबसे definitely. पहले जॉब जरूरी है, इसके बाद You must conclude तो now. इंडिपेंडेंसी को 9th में रखते हैं। तो सर ने कंक्लूड करने के लिए बोला है, कंक्लूड का अपॉर्चुनिटी अपने पास लेना होगा। जैसे हम लोग ने क्या रखा है, वर्क प्रोफाइल रखा है। हम वर्क प्रोफाइल क्या ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी वर्क प्रोफाइल होती है। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, हमको किस then long-term growth opportunity, Fourth one is salary, then flexibility, promotion, respect, flexibility in working hours, then recognition, नहीं, प्रमोशन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रमोशन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, Promotion के बाद flexibility है. फ्लेक्सिबिलिटी है प्रमोशन के बाद। ओके गाइस, तो एक बार मैं पूरा समराइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा वर्क प्रोफाइल, बिकॉज़ हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, हमारा वर्क का नेचर कैसा हमारे सबसे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पे हम लोग लिखा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, हमारी क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं। फिर थर्ड पे हमने रखा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज़ हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एम्प्लॉय, बिकॉज़ अगर जो हमारी कंपनी का फ्यूचर होगा वही हमारा भी फ्यूचर होगा। ओके, देन फिर फोर्थ पे हमने रखा सैलरी, कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी, बिकॉज़ अल्टीमेटली हम मेरे को अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो सैलरी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। देन फिर आते हैं मेरे प्रमोशन, कितने फ्रिक्वेंटली मेरे प्रमोशंस हो रहे हैं, जितने फ्रिक्वेंटली मेरे प्रमोशन होंगे उतना जल्दी मेरा करियर बिल्डअप होगा। ओके, करेक्ट। देन फिर 6 पे हमने रखा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, जिससे मेरा क्या हो, फैमिली मैनेजमेंट ही प्रॉपर हो सके, मैं फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाऊं, वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। देन फिर 7 पे रखा रिकॉग्निशन, लाइक मेरे वर्क को कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है। फिर 8 पे मैंने रखा 8 पे हमने रखा रिस्पेक्ट, फिर 9th पे हमने रखा है इंडिपेंडेंस, 10th पे रखा है हमने प्रॉक्सिमिटी टू होम। होम। So sir, that's the conclusion for I think respect should be first and recognition will be the alternative point. So all final now done. Because नहीं, recognition ठीक है। like नहीं, recognition when you will get difficult to decide when you get recognized, both look same, but देखिए हम लोग को रेस्पेक्ट कब मिलेगा, जब रिकॉग्निशन हमारे काम का वो we will automatically get respect. Can you listen my example? Like one YouTuber is YouTube पे कोई डेटा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, पर वो भी रिकॉग्नाइज हो जाता है, और एक IAS ऑफिसर बनता है वो भी रिकॉग्नाइज होता है, बट व्हाट इज द प्रेस्टीजियस, व्हाट यू consider is the important and respectable. I think we should not take YouTube as example because this is about a job that we have to select. YouTube is not. आप भी जो चॉइस करेंगे तो आपको लगेगा ना, आप वो चॉइस करना चाहेंगे जो आपके सर कंक्लूड करने के बोले अनीता, प्लीज लिसन। या सर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, हमारा अपॉर्चुनिटीज मिला, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। Yes, अजीत प्लीज कंक्लूड। या मुझे मेरे अकॉर्डिंग से ये पॉइंट सब लोग का मैंने बहुत क्लियरली सुना और मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जॉब के लिए वर्क प्रोफाइल बहुत होता है। वर्क प्रोफाइल जिससे हम ये जाने कि हम किस लिए, अगर कोर के लिए है तो हम नॉन कोर का जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट कवर किया है, जो भी हमारा इंटरेस्टेड चीज है, उसी में जॉब हर कोई चाहता है, और जो आपका स्ट्रेंथ है, इसलिए वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा जरूरी होना चाहिए। सेकंड सर मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डिप्लोमा के लिए अलग होता है, बीटेक के लिए अलग होता है, एमटेक के लिए अलग होता है, पीएचडी के लिए अलग होता है। कहीं भी अगर मैं कंपनी बीटेक से लेकर एमटेक कहीं भी कवर किया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोग पहले ही जान लेते हैं कि कंपनी आ रही है, इसका कितना मैंने जॉब प्रोफाइल क्या, सैलरी क्या है।
उसके बाद Ajit, according to you, salary is second. या उसके बाद मुझे That is not that is not the It's group already that is role Yeah. It's not in the our second group responsibility. conclusion. Ajit, Then that is long not term our growth conclusion. opportunity right? होना चाहिए. So second Based point was on You should the responsibility perform only. is the roles and Point by नहीं, responsibility ये only. conclusion When है. you give the conclusion, you have to go with the Ajit, conclusion you है, you ये should नहीं कि give आप- the group Yeah, conclusion. I not think yours. मैंने एक साथ conclusion जाएगा, दे एक दिया साथ एक बार. डूबेगा. Go with the Ajit, you team have to only. go with our Ajit, group. you should speak It's about our teamwork. group conclusion, not conclusion group. है ना, तो आप अनीता सुनो Then तो. you can add your own points. I think मैंने conclusion दे दिया है शायद एक बार. माइक आप और एक बार दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ. Okay, okay. Yes, yes, हाँ, Maya, पर आप Maya, फ्रॉम द please say फाइनल one more कंक्लूजन, time. ठीक है. हाँ, मैं- तो फ्रॉम हम लोग का जो कंक्लूजन जो भी आया, सबसे पहला हम लोग जो चूज किया वो है वर्क प्रोफाइल, क्योंकि बेस्ड ऑन आवर वर्क प्रोफाइल Yes. हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोफाइल हम लोग मैनेजर पे पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर पे जा रहे हैं, या हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे जा रहे हैं, या जैसे कोई हमारे कॉलीग बोले कि वो डिप्लोमा पे जा रहे हैं. वो डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, हम लोग को अपने एलिजिबल के हिसाब से हम लोग को कौन सा प्रोफाइल मिल रहा है. तो सबसे पहले हम लोग वो चूज किए. दूसरा है, जब वो प्रोफाइल हम लोग चूज कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के थ्रू से मिल रही है, कि आप अगर ये पोस्ट में, हम लोग अगर ये पोस्ट में ज्वाइन हो रहे हैं तो हमारे लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग किन किन लोगों को लीड करना है, मतलब कितने लोगों का अंडर, कितने लोगों हमारे अंडर में काम करेंगे, या किन किन लोगों को हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. वो है सेकंड. थर्ड है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो भी लॉन्ग टर्म हम लोग जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म उस पर, क्योंकि हम लोग को जब एक पर्टिकुलर कंपनी हम लोग चूज करें, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक कोई बोला थे कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी हम लोग को 15 या 16 लाख दे रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट पीएसयूज, कोई गवर्नमेंट पीएसयूज हम लोग को अगर 13 या 12 या 13 लाख दे रहे हैं, तो हम लोग क्या चूज करेंगे. तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट को ज्यादा प्रीफर करें, कि हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीजों को सोच रहे हैं लेकर. ये तीसरा पॉइंट था. चौथा पॉइंट था सर सैलरी. चौथा पॉइंट था हम लोग का जो सैलरी रैंक पे आता है सैलरी, जो हम लोग एक बेसिक नेसेसिटीज भी है, प्लस हम लोग का ये भी है कि हम लोग जैसे अपने परिवार को या अपने को या हमारे फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग जैसे सपोर्ट कर सके. ये था चौथा. पांचवा था प्रमोशंस. जो हम लोग को प्रमोशन एक ऐसा चीज है कि जो हम लोग को मोटिवेटेड बना के रखता है कंपनी में, कि हाँ हम लोग को प्रमोशन मिल रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ हम लोग को अपना दिख रहा है कि हम लोग प्रमोट भी हो रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का पोस्ट भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग का ग्रोथ भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट और जो भी चीज है. तो प्रमोशन हम लोग 5th पे रखे, 1 2 3 से 5th पे रखे. फिर 6 में हम लोग देखे कि फ्लेक्सिबिलिटी. 6 पॉइंट हम लोग का है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हम लोग फ्लेक्सिबल हो पर्टिकुलर एक में, जैसे करें कि हम लोग जैसे 2-3 चीजों पर भी हम लोग फ्लेक्सिबल हो सके चीजों लेकर. फिर 7वां हम लोग का है रिकॉग्निशन. हम लोग को रिकॉग्निशन, एक कंपनी में हम लोग अगर इतना साल काम करें, या हम लोग शुरू कर रहे हैं, या जो भी फेज में हम लोग स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन करें, या बीचों बीच हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, या हम लोग बहुत साल तक काम कर चुके हैं, ये तीनों फेज में भी हम लोग रिकॉग्निशन अगर कंपनी से पा रहे हैं, तो वो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेस्पेक्ट पे आ जाएगा हमारी बात, कि हम लोग अगर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं कंपनी के थ्रू से कि हाँ भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, वो प्रोफाइल पे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये जो भी ले रहे हैं, तो जो रिकॉग्निशन जब हमारा कंपनी से हम लोग को मिलता है, तो अपने आप एक रेस्पेक्ट भी हम लोग को मिल जाता है उस कंपनी से. फॉलोड बाय आवर नेक्स्ट पॉइंट जो है रेस्पेक्ट. फिर 9th पॉइंट हम लोग का इंडिपेंडेंसी, जो हम लोग सबसे ऑब्वियसली जो ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि इंडिपेंडेंसी भी होना चाहिए जब हम लोग पर्टिकुलर जॉब को चूज कर रहे हैं. और इसीलिए हम लोग 10th में प्रॉक्सिमिटी टू होम को लास्ट में रखे इंडिपेंडेंस से, क्योंकि एक पर्टिकुलर होम टाउन में मे भी हम लोग, वो एक अनसर्टेन पॉइंट है कि हम लोग को जिस जगह पर मेरे होम टाउन में अगर मैं जॉब चाहता हूँ और पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मे बी वो कंपनी वो जगह में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. उस रीजन को हम लोग बेस करते हैं, हम लोग किसी कंपनी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को बेसिक नेसेसिटीज ये है कि हम लोग को जॉब पाके हम लोग को इंडिपेंडेंसी अपने एक चाहिए अपने में. तो ये हम 9वां पॉइंट रखे. 10वां पॉइंट हम लोग का लास्ट है प्रॉक्सिमिटी टू होम. ये हम लोग का 10 नंबर आया. ये हम लोग का 10 कंक्लूजन. Yes, we are agree with you. अब इसमें ना एक चीज चेक करना आप. वैसे तो as I told you, there is nothing like right or wrong, but if you divide all these 10 parameters, there are 3 categories of that. One is category which is related to job, what you see in job, short term and long term. I don't know you people have done Maslow's need hierarchy or not. Have you ever heard about that? Maslow's need hierarchy, basic needs, and then social needs, yes sir, yes higher sir. order needs. Like Yes, food sir. and all, they are basic needs. Recognition, self-actualization, they are higher order needs. Now in job also, it is something like that. In the beginning, you want, you know, work profile, roles, responsibilities, and salary, promotion. They are the basic things. If I do not give you salary or promotion, and if basic needs are not satisfied, even if I give you a very good post, you are a director in the company but without salary, you will never join that. So
फर्स्ट कम्स योर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में जैसे तुम जॉब, अब ऑनेस्टली पूछो अपने आप से, अब ये जीटी हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया अभी जीटी, अभी ऑनेस्टली पूछो क्या करोगे। तो आप पैसा चाहिए, ऑब्वियसली पैसा भी चाहते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अब ये सब चीज है तुम्हारा लॉन्ग, जो तुम वर्क प्रोफाइल बोल रहे हो, वर्क प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आईटी जॉब्स क्यों छोड़ देते हैं आप? आईटी जॉब्स में सैलरी अच्छा मिलता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वर्क प्रोफाइल शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेसफुल रहता है सर वर्क मेन प्रोफाइल एक अच्छी, हेक्टिक बहुत होता है वहाँ पे। हाँ बहुत हेक्टिक रहता है, स्ट्रेसफुल भी होता है। वर्क एनवायरनमेंट प्रोफाइल- उतना अच्छा नहीं है। वर्क प्रोफाइल एक चीज है, और उसके बाद तुम्हारा जो प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, दिस इज वन ग्रुप एक्चुअली, ये एक ग्रुप है। उसके बाद इवन फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स भी उसी में आता है। उसके बाद रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इंडिपेंडेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरा ग्रुप है। एंड लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो पहले ग्रुप में है। लास्ट में है प्रॉक्सिमिटी टू योर होम, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स को भी लास्ट वाले ग्रुप में डाल सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो तुम बेसिक चाहते हो जॉब के अंदर, वर्क प्रोफाइल मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, सैलरी मिल जाए, ये तुम्हारा पहला ग्रुप है। उसके बाद ये सब एंश्योर हो गया, जैसे तुम सेल जा रहे हो तो सेल में तुम्हें पता है सैलरी क्या है, प्रमोशन का भी पता है, वर्क प्रोफाइल का भी पता है तुम्हें थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता नहीं है। रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इंडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर ऑफ आवर्स, ये तुम्हें पता नहीं है। प्रॉक्सिमिटी टू होम जो चीज है और इंडिपेंडेंस वगैरह वो लेटर स्टेज की बातें हैं। प्रॉक्सिमिटी टू होम एक्सक्यूज हो जाता है, नो डाउट जॉब में होता है, लेकिन वो एक्सक्यूज होता है, वो क्राइटेरिया नहीं होता एक उसके लिए। सो इस तरीके से आपने तीन चीज में डिवाइड करना था, एक जिससे आपको ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट हो, दूसरा जो लॉन्ग टर्म में तुम उसका जॉब में देख रहे हो लॉन्ग टर्म में, और तीसरा जो तुम एक्सक्यूज नहीं देखना है। तो आई एम हैप्पी अगर आपने प्रॉक्सिमिटी टू होम एंड में रखा है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स भी अगर तुमने एंड में रखा है, क्योंकि वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी तुम एक वो जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि तुम्हें पर्टिकुलर टाइम पे काम करना पड़े। तो अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते थे, राइट? दिस इज हाउ यू कुड हैव डन। सर एक चीज है, सर एक चीज है, मेरे को यहाँ से एक डाउट आया, आप जो भी बोले फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे को उसी पे डाउट आया कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जिस मेंटेलिटी से हम लोग जो पॉइंट्स बना रहे थे, तो वो थोड़ा कुछ मतलब कंपनी के फेवर में भी सोच के हम लोग बना सकते हैं कि अपने ग्रुप के हिसाब से ही हमको चलना है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट में मेरे को वो डाउट आया कि हम लोग कंपनी के थोड़ा टिल्ट कंपनी की ओर से सोच सकते हैं या अपने हिसाब से हम लोग सोच के अपना पॉइंट देंगे। तो क्या है ये, इसके लिए हर आदमी का अलग असर होगा इसमें, क्योंकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी है। किसी को रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट उसकी नीड होती है, कुछ को नहीं होती है वो नीड। किसी को फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स में रिक्वायरमेंट हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, वो थोड़ा वेरिएशन चलेगा इसमें। मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि इसमें कोई हायरार्की फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिविजुअल चॉइस से रिलेशन है इसका। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स अगर कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसको जरूर फोकस करोगे, लेकिन अगर कंपनी बोल रही है नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट में कौन जाएगा बताओ? अब मैं एक डॉक्टर है जिसको नाइट ड्यूटी पे जाना है, वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मेरे को नाइट ड्यूटी पे नहीं जाना, तो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर कंपनी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम देती है जिससे कंपनी को नुकसान नहीं है, तुम्हें भी वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तुम बोलते हैं हाँ सर मैं वर्क फ्रॉम होम चूज करती हूँ, ठीक है वो तुम्हारी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी तुम्हें बोलती है नहीं वर्क फ्रॉम होम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हें उसको ओबलाइज करना पड़ेगा। इसलिए ये जो चॉइसेस हैं ये इंडिविजुअल के ऊपर और कंपनी की रिक्वायरमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये ऐसे हमारा दोनों के ऊपर इस चीज का डिपेंडेंस होता है, अकॉर्डिंगली हमें इसको देखना पड़ता है। सर आपने जैसे पहले पॉइंट्स लिखने को बोले थे, तो मैंने वैसा किया कि 9 पॉइंट में मैंने फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स रखे हैं। तो सर वो क्या चेक होगा? लाइक मैंने पहले जो लिखे थे और उसके साथ जो डिफरेंस हो रहा है ग्रुप जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया उस फॉर्मेट में वो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। ये एचपीसीएल का फॉर्मेट था कि जो आपने लिखा, जो कंसेंसस बना, वो पूछेगा आपने इसको 9 में क्यों लिखा, बताओगे आप, रीजन दोगे ना आप। जो तुम रीजन दोगे कन्विंसिंग होना चाहिए।
तो सर फिर वो सर सर एक चीज पूछना था सर मेरे यहाँ को। जो एक 2 पॉइंट था, सर आपके respect and अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या है? recognition। सर यहाँ पे हमारा हमको जॉब चूज करना था, आफ्टर दैट रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन वी कैन गेट ना। तो मेरे चॉइस के समय हम रिस्पेक्ट देखे या रिकॉग्निशन देखे, इस पे एक डिस्कशन था। आपको तो पता है पब्लिक इसमें क्या सेक्टर, डिफरेंस, क्योंकि रिकॉग्निशन मिलना। पब्लिक सेक्टर की जॉब लार्जली या गवर्नमेंट की जॉब इंडिया में लोग ज्वाइन करते हैं प्रेस्टिजियस होने की वजह से। टाटा की जॉब बुरी नहीं है, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक की बुरी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की बुरी नहीं है जॉब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में फॉर्च्यून 500 कंपनी है। बहुत से पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब कहीं स्टैंड नहीं करती उसके आगे वैसे तो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है, सैलरी तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट जितनी, प्रमोशन ग्रोथ भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। तो तुम गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर क्यों लगोगे माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में, ये बताओ। अब यहाँ पे एक चॉइस तो डाली नहीं थी कि काम करने को ना मिले, देयर शुड नॉट बी एनी वर्क, जो मेन रीजन होता है गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने का क्या कारण है? मेन सर काम ना करना पड़े, बस जॉब सिक्योरिटी, काम ना करना पड़े, ये 3-4 दे दें। मेन तो वो थी सर, नो वर्क, 2 hour job। हाँ 2 hour जॉब, नो वर्क टू बी डन, वो होना चाहिए एक्चुअली में तो वो है। पर आप सोचो कि रिकॉग्निशन जॉब के साथ ही, आप जो जॉब में जाते हैं, ईएएस अधिकारी बनते हैं, एएस बनते हैं, रिकॉग्निशन होती है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आसपास की कंपटीशन लेके लड़का आया, वो रीजंस है। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, आपको अपना लगता है ना कि क्या आपको चाहिए उसमें, आप जॉब करते हो, उस जॉब के अंदर रिकॉग्निशन होना चाहिए, वो है उसका मतलब रेस्पेक्टफुल जॉब होनी चाहिए आपके लिए। सर रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंस है? बेसिक रेस्पेक्ट होती है जो आपके आसपास के लोग आपको देते हैं, आपका बॉस आपको देता है, सबॉर्डिनेट आपको देते हैं। और रिकॉग्निशन होती है जो आपको ओवरऑल सोसाइटी में मिलती है, नाम होना। नाम अच्छे आदमी का भी हो सकता है, बुरे का भी हो सकता है, रेस्पेक्ट अच्छे की होती है। रिकॉग्नाइज तो अलग चीज है ना, तुम इसको रिकॉग्नाइज करती हो, ये बहुत बड़ा डकैत है, हाँ ये तो डकैत है, मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ नहीं। So respect comes before recognition। सर यहाँ पे जो हम लोग प्रायोरिटी बना रहे थे, तो हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए पहले, रेस्पेक्ट या रिकॉग्निशन? ये आपके ऊपर, आपका सोल्यूशन क्या है सर, एक बार दिखाओ ना। सर मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन पूछना था कि सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रमोशन में क्या मतलब है, कैसे दोनों को ऊपर मतलब नहीं, प्रमोशन शॉर्ट टर्म होती है, प्रमोशन शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है कि आप इवन जॉब के बाद भी आपने क्या गेन किया जॉब में, जॉब के बाद भी तुम्हारी क्या वैल्यू बनी। जैसे कोई लोग बहुत फेमस हो जाते हैं और वो पूरी लाइफ फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। प्रमोशन जॉब्स के साथ ही खत्म हो जाती है। आप रिटायर कहाँ पे हुए? सर मैं रिटायर हुआ चीफ इंजीनियर, ठीक है डन, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ कुछ और चीज है ना, वो तो मतलब आप लगे रहोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं वेंचर में हूं, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रमोशन थोड़े है मेरा तो एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रमोशन का है। मे बी रिकॉग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ हो। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ मींस कि मेरी कंपनीज प्रमोट होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, इनका वर्थ बढ़ता जाएगा, इनका रीच बढ़ता जाएगा। प्रमोशन थोड़ी मेरे साथ रिलेटेड है वो चीज, तो ये चीज मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो प्रमोशन अलग है कि आप कितने टाइम के बाद क्या बनते चले जाओगे। सर लेकिन एज एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा यार? दोनों ही। अब आप देखो कि आईआईटीज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो तुम, फिर तुम कुछ 3-4 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो, फिर तुम फुल प्रोफेसर बन जाते हो। अब फुल प्रोफेसर के बाद तुम्हारी प्रमोशन नहीं होती, करियर ग्रोथ भी रुक जाती है क्या? ऐसे ऐसे प्रोफेसर जो पूरी लाइफ ही फिर बड़ा नाम बना लेते हैं एक फील्ड में, प्रमोशन रुक गई लेकिन ग्रोथ थोड़ी रुकी। डिफरेंस है दोनों के अंदर। तुम्हें क्या चाहिए, तुम देखो। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे सपोज पहले हम लोग ने तो अपने पॉइंट, जैसे जॉब का था तो हमने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट सेट कर दिए थे, उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ तो फिर हमारे जंबल हो गए पूरे। तो बाद में पूछेगा ना कि ये तो आपने सेट करे थे, तो आप दूसरों की बातों में आके आपने अपने पॉइंट क्यों चेंज कर दिए? तो उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं आप बोल सकते हो कि सर हाँ मेरे को तो यही ठीक लगा था, लेकिन देन आई थॉट ऑफ गोइंग विद द टीम। ओके हो सकता है, कोई इशू नहीं। बिकॉज सर मैंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देखा था, तो वो बता रहा था कि जो पॉइंट रखा उसी पे स्टिक रहो चाहे जो हो जाए। तो इतने रिजिड हो सकते हैं या फिर नहीं नहीं रहना ना, नहीं होना चाहिए। ग्रुप के साथ ही जाना है। हाँ
ग्रुप के साथ आपको जाना चाहिए। रिजिड हो गए तो कभी कंसेंसस बनेगा ही नहीं। हाँ वही तुम्हें किसी की बात सुननी भी पड़ती है और अपनी बात सुनानी भी पड़ती है, टीम के साथ मूव करना पड़ता है। देखिए कई बार ऐसा होता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे आर्मी में है, तुम सब लोगों को एक डायरेक्शन में जाना है, तो उसमें 3 डायरेक्शन में कंफ्यूजन चल रहा है, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं। तो एज अ टीम जाना है, तुम्हें लगता है कि यही सही है, बाकियों को लगता है वो सही है, तो ऐसे टाइम पे कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज तुम कभी जा नहीं पाओ, आगे नहीं मूव कर पाओगे लाइफ में। लार्जली चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में। आपका मैरिज हो गया, आप बोल रहे हो नहीं ये चीज खरीदते हैं, ये कार खरीदते हैं, आपकी वाइफ बोल रही है, आपका हस्बैंड बोल रहा है ये खरीदते हैं। अपनी जगह पे अड़े रहेंगे तो क्या खरीदोगे ये बताओ? अपनी जगह अड़े रहे तो कार घर आएगी नहीं, लड़ते रहोगे तुम, कुछ नहीं होगा, कुछ कार नहीं खरीद पाओगे तुम। और लाइफ में मेजोरिटी सिचुएशंस ऐसी हैं लेकिन पैसा सेव हो जाएगा। हाँ पैसा सेव हो जाएगा तुम्हारा, पैसा लेके कहाँ जाएंगे? दैट इज हाउ यू हैव टू रीच कंसेंसस। सर मेरे को एक डाउट था सर, जैसे हम लोग पहले जब शुरू हुआ तो थोड़ा हम लोग का जैसे थोड़ा चाव से पूरा हो गया, पूरा भीड़ भड़ाका हो गया, 4-5 मिनट में 6-7 लोग पूरा कॉन्करेंटली बोलने लगे। तो सर हम लोग जैसे कि डिसाइड किए कि चलो मेजोरिटी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को जैसे लेके मयंक और मैं जब हम दोनों शुरू किए कि एक पॉइंट को वो बोलेंगे, हम लोग जो एग्री कर रहे हैं तो मेजोरिटी के हिसाब से हम लोग एग्री कर रहे हैं। तो सपोज कि कोई जैसे कि हम लोग इतने लोग थे, शायद अगर मैं सपोज पहले ही वर्क प्रोफाइल से पहले ही मैं, तो शायद मैं उसमें अगर मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 7-8 लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो मैं अपना पॉइंट वहां पर रख सकता हूँ पहले कि मैं क्यों एग्री नहीं कर रहा हूँ इस चीज पर, कि हाँ इस पॉइंट पे मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये है। आपको बड़े प्यार से सबको बोलना चाहिए, सी मेरा व्यू ये है, मैं अपना व्यू आपको बताता हूँ, फिर आप अपना व्यू बताइए और एक पे कंसेंसस हिट कर लेते हैं, फिर आप बोलना नहीं तो सर तो मेरा डाउट ये है कि जैसे कि मैं अपना पॉइंट रख लिया तो मैं अपना जस्टिफाई करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि मुझे फिर टीम के साथ जाना चाहिए। अगर मैं बहुत अच्छा पॉइंट रख रहा हूँ तभी, लेकिन मतलब बाकी की जो रेस्ट है वो उतना एग्री नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब वही पॉइंट पे स्टिक रहना चाह रहे हैं। तो फिर मैं अगर इतना अच्छा पॉइंट रखने के बावजूद भी अगर मैं उनके साथ स्टिक रह गया टीम के साथ, तो मेरा वो नेगेटिव कुछ नहीं बनेगा ना सर, क्योंकि मैं उस पर पॉइंट रख रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि ये सही है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि इस तरफ चलना चाहिए तो मैं कंसेंसस में हम इस तरफ चलते हैं। तो ऑब्जर्वर सुन रहा होता है ना कि यार लड़के ने बात तो ठीक बोली थी इसमें, तो चलो इसने कंसेंसस भी बना दिया। अच्छा तो ग्रुप में एक चीज चल रहा होता है की तरह है, कंसेंसस जरूरी है। ठीक है तो ग्रुप में चल रहा होता है कि लोग रेज हैंड करवाते हैं, तो क्या हम वहां भी करवा सकते हैं इस तरीके का? नहीं, हैंड रेज आप कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, वैसे पता लग ही जाता है, वॉइस से पता लग जाता है कितने लोग एग्री कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, आई थिंक मेजोरिटी जो है वो रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, रिकॉग्निशन को नेक्स्ट दे रहे हैं। ये आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे को लगता है रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन एक ही लेवल पे हमें रखनी चाहिए। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि वहां पे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रेज हैंड करवाएं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप दो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उसको एक नंबर पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग 50-50 हो जाते हैं, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली तो नहीं होना चाहिए। अगर 50-50 हो रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को एक जगह रख दो। ओके, वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें मैं। अगर आपको लग रहा है 50% रिस्पेक्ट बोल रहे हैं, 50% रिकॉग्निशन बोल रहे हैं, तो उन दोनों को एक ही जगह पे रख दो, राइट? सो पॉइंट, मेन थिंग इज यू शुड स्पीक विच यू आर डूइंग नाउ। आप बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दिस इज गोइंग टू इवेंचुअली हेल्प यू। आपको इसी का पता शायद नहीं चलता कि आप में इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, और वो आपको पता चलता है जब आप वहां पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि यस, मेरे बोलने से, मेरे करने से, प्रैक्टिस करने से मेरे को बेनिफिट हुआ है। नाउ आई एम इन पोजीशन टू टॉक देयर एंड स्पीक देयर। अदरवाइज कई बच्चे तो वहां एक भी लाइन बोल ही नहीं पाते, पूरे आधे घंटे में मुंह ही नहीं खोल पाते, इतना प्रेशर में होते हैं कि अब कैसे बोले, क्या बोले। वो नहीं होना चाहिए सिचुएशन। तो ये सारी हम प्रैक्टिस उसके लिए करते हैं। तो और बाकी ऑब्वियसली आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, आपको उस लेवल तक जाना है बस जिसमें कि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें कि बोला ही नहीं जा रहा है, वो लेवल ना हो बस। क्योंकि अगर आप वहां कुछ बोल दिए और काम की बात बोल दिए तो नंबर मिल जाते हैं, तो ट्रबल नहीं आता। ये है। बाकी ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि नंबर 1 पे इसको रखा, नंबर 2 पे इसको रखा, ये मतलब इसके लिए ग्रुप टास्क में इस पे नहीं डरो आप, दैट इज नॉट अ इशू। सर मतलब अगर से हम पॉइंट डिसाइड भी कर रहे होते हैं तो क्या कॉमन फैक्टर होता है जो हमें फोकस करना चाहिए?
पॉइंट डिसाइड करते समय कि मतलब इस लॉजिक से जा सकते कि आप हैं। कंसेंसस बिल्टअप करने की डायरेक्शन में आपकी एफर्ट दिखना चाहिए कि आप कंसेंसस बिल्टअप करने की डायरेक्शन में फाइट मार रही हैं। सर इनिशियली अगर से हम इंडिपेंडेंट वो पॉइंट बना रहे हैं, आफ्टर दैट जब कंसेंसस में डिस्कशन होगा तो वो उसके हिसाब से जंबल हो जाएगा। पर इनिशियली क्या सोच के, मतलब कैसा लॉजिक वो होना चाहिए कि मैं इसको माइंड में रख के पॉइंट बनाऊंगी। नहीं, ऐसा तो कोई भी लॉजिक नहीं है उसके पीछे। आपको ठीक लगता है तो आप बताओ आपको क्यों ठीक लगता है लोगों को, या आप बाकियों से कन्विंस हो जाएं या आप बाकियों को कन्विंस कर लें। पर ज्यादा असर्टिव नहीं होना, रिजिड नहीं होना चाहिए अपने पॉइंट पे ज्यादा। आपको दूसरों की बात सुन के अपनी बात अपनी रख के और कंसेंसस रीच कर देना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए कंसेंसस बनवा रहे हैं आप, राइट। चलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए, कल भी हम 2-1 सेशन करेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहो। यही चीज है जो मेन मैटर करेगी कि आपने कितना बोला, कैसे आप बोल रहे हैं, बस वो चीज मैटर करेगा वहां। बाकी जितने ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं उनको सुनते जाओ, फीडबैक जो लास्ट में डिस्कशन होता है उसको सुनते जाओ, दैट इज आल्सो रेलेवेंट, राइट। चलो आई विल कैच यू टुमारो देन, थैंक यू। सर मुझे स्नैप चाहिए दोस्त। हाँ, वो आपके ग्रुप में मैं डालूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप उसको चूज सर एक्चुअल में क्या मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन का लिस्ट नहीं बना हुआ है। हाँ कोई नहीं, मेरे साथ करो ना उसका, तो मुझे वो चाहिए था सर कल के वो लिए। आपको मैं डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में। ओके।